So guys, we'll continue where we left last time. Good morning to all of you. Question 10 तक हम लोग ने last lecture में complete किया था, and I guess by last lecture completion we were done with all the concepts. If you remember the concepts we have studied, first one was payback period, payback profitability, ARR, that is accounting rate of return. ये non discounting concepts है. और discounting concepts में first one discounted payback, NPV, that is net present value, NPV index, or we can call it as PI, that is profitability index, and last one we did was IRR. We solved 10 questions and they were all on basics. Now today I'll pick up the questions which will have everything randomly. Pakka? Chaliye. Question number 11. C Limited is considering investment in a project. The expected original investment in the project will be rupee 2 lakh. The life of the project will be 5 years with a nil salvage value. The expected net cash inflows after depre but before tax. Please underline the word net cash inflows after depre but before tax. After depre but before tax. NPBT. After depre. Depre minus ho gaya. Tax minus nahi hua. NPBT. During the life of the project will be as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5 rupees 85, 1 lakh, 80, 80, 40. The project will be depreciated at the rate of 20% on the original cost. The company is subjected to 30% tax rate. Required. Calculate payback period and average rate of return. Second, calculate NPV and net present value index if the cost of capital is 10%. And last one, calculate the internal rate of return. First things first, and the factors are given to you at 10%, 37%, 38% and 40%. First things, उन्होंने हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पेबैक कैलकुलेट करने के लिए CF चाहिए, ARR के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, NPV कैलकुलेट करने के लिए DCF चाहिए और IRR पूछा है तो यहाँ पे तो थोड़ा R&D करना पड़ेगा हमें. Let us have a look at this thing now. First one, question number 11. पहले टेबल years 1, 2, 3, 4, 5. Is it 5 years that we are talking about? Too good. उन्होंने हमें NPBT दिया है. हम जंप मार के NPAT कैलकुलेट करेंगे. उसमें हम डेप्री ऐड कर देंगे तो हमें CF मिल जाएगा. डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे तो DCF एट द रेट 10% मिलेगा. फिलहाल टेबल यहाँ तक काफ़ी है. देन टेबल विल एक्सीड. इसीलिए एक जेन्युइन रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ नहीं लिखेंगे, आप कैलकुलेशन करने में हेल्प कीजिए मुझे. एंड 5 years वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए फर्स्ट वन, NPBT 85, 1 lakh, 80, 80 again and 40. That is net profit before tax. How much is the tax rate we have? 30%. So अगर 30% tax है तो can I say ये सारे amounts का मैं 70% निकालूंगा after tax. So 85,000, 70%, 59,500, 70,000, 70,000 सर. 1 lakh इंटू 70% करना है आपको. सबको 70% से मल्टीप्लाई करना है. 56, 56, 28. ये हमको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें हम क्या ऐड करेंगे? डेप्रीशिएशन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 2 lakhs. Scrap value is nil. Life is 5 years. Depreciation 2 lakh minus nil divided by 5 year is equal to 40,000. Correct है? So depre 40,000 ऐड करना है. 59,500 plus 40, 99,500, 1,10,000, 56 plus 40, 96, 96, 68.
टू गुड. दिस इज सी एफ पे आई गेस हमारा पे बैक पीरियड मिल जाएगा हमें. ARR हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे मिल जाएगा. NPV के लिए हमें 10% DCF की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट वन फैक्टर दिया हुआ है आपको. 10% का पहला फैक्टर 0.909, सो 99,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.909. नाइन 445.5 तो 446 कर दें हम इसे. चलिए 1,10,000 इंटू 0.826 90,860 है. नेक्स्ट वन 96,000 इंटू 0.751. यस सर 751. बोलो 096 and same 96,000 multiplied by 0.683. Very good. And last one 68,000 multiplied by 0.621. अच्छा ये सब का टोटल कीजिए 42,228 and total of all the DCF 90,446, 90,860 plus 72,096 plus 65,568 and plus 42,228. Hmm, 3,60,000. Very good. 3,61,198. जकास. IRR के लिए कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, बट वन बाय वन. सबसे पहले पे बैक पीरियड 1, पे बैक पीरियड विद इन हाउ मेनी ईयर्स वी गेट आवर मनी बैक. एंड पे बैक पूछा है, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं पूछा है. सो नॉर्मल कैलकुलेशंस होनी चाहिए. कैश फ्लो पे 2 लाख आपको वापस चाहिए. 99,500 प्लस 1,10,000. 2 लाख क्रॉस कर लेगा ये? ज़्यादा हो जाएगा ना 2 लाख से. हमें कितना पैसा वापस चाहिए? सिर्फ 2 लाख. सो इट इज़ 1 प्लस 2 लाख माइनस 99,500 करो. वेरी गुड. 1,05,000 आउट ऑफ हाउ मच? 1,10,000. चलो आंसर निकालो. 1,05,000 डिवाइड बाय 1,10,000 प्लस 1 1.9136 years. नहीं इतने में काफ़ी है. 1.9136. आपने ये प्लस 1 ऐड किया है ना पहले. वेरी गुड. ये हमें क्या मिला? पे बैक पीरियड. करेक्ट है. सेकेंड वन, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू? दे आर आस्किंग यू ARR. So ARR is equal to average profit after tax divided by average investments multiplied by 100. Average profit after tax last lecture में भी आपको समझाया था. ARR is the only funda which is not calculated on cash flows, which is calculated on the profit after tax. ये सारे profit after tax लीजिए आप. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and divide by 5 करेंगे हम. 59,500 70 56 56 28 and divide by 5 53,900. Very good. Divided by average investments. Average investments का फॉर्मूला याद है आपको? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 प्लस क्लोजिंग प्लस वर्किंग कैपिटल. ओपनिंग इज 2 लाख माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2. 2 लाख माइनस नील डिवाइड बाई 2 इज 1 लाख प्लस क्लोजिंग है नहीं प्लस वर्किंग कैपिटल है नहीं. सो डिवाइडेड बाई 1 लाख. 59,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 53.90%. Are we getting that answer? 53.90%. Too good. Next one. Third question इन्होंने हमें पूछा है
is ARR, वो तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया. नेट प्रेजेंट वैल्यू 3. दे आर आस्किंग यू नेट प्रेजेंट वैल्यू. बहुत सिंपल है यहाँ पे तो कैलकुलेशन में. पीवी इनफ्लो, इनफ्लोज के नाम पे सिर्फ एक ही इनफ्लो है हमारे पास, रिकरिंग इनफ्लोज. सो वी हैव 3,61,198 minus PV outflow, and the PV outflow is 2 lakh, that is cost of asset, nothing else. So we get the answer 1,61,198. This is my PV inflow at the rate 10%. Inflows minus outflows, that is at present value. NPV पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा NPV है. थोड़ा बहुत सेंस यहीं से चालू हो जाना चाहिए कि IRR ढूंढने के लिए कहा है. IRR is the rate at which NPV becomes 0. At 10% if the answer is positive, हमें IRR कैलकुलेट करने के लिए एक आंसर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो नेगेटिव हो, और फिर वहाँ पे इंटरपोलेशन करके आंसर फाइंड करना. फिलहाल आगे चलते हैं. NPV के बाद फोर्थ वन, आर दे आस्किंग यू PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PV inflow divided by PV outflow. PV inflow is equal to 361,198. PV outflow 2 lakhs. 361,198 divided by 2 lakhs. 1.80599 is to 1, or you can just write 1.80599. This is your PI profitability index. It is also known as NPV index. Question number 1, 2, 3, 4, 5. They are asking you something that is known as IRR. बट IRR के लिए हमें एक पॉजिटिव NPV और हमें एक नेगेटिव NPV चाहिए. अभी एक 10% पे पॉजिटिव तो मिला है, उन्होंने जो फैक्टर दिए वो यूज़ किया कीजिए ऑलवेज. आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़े. दे हैव गिवन यू एट 37%, देन दे आर गिविंग यू 38, देन दे आर गिविंग यू 40, मतलब कहीं पे आसपास में होगा. सो मैं एक 37 स्किप करके 38 पे कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ. 10 और अगर 38 पे नेगेटिव आ रहा है तो 10 और 38 के बीच में निकालेंगे. 38 पे भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम 40 पे जाना पड़ेगा. 40 भी ले सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज एनीथिंग विच इज बिटवीन 38 एंड 40 हैज़ टू बी बिटवीन 10 एंड 40 ऑल्सो. बट IPCC पे ये लोग हमें ये कहते हैं कि कोई दो नंबर क्लोजर हो उसके बीच से निकाला कीजिए. सो आई एम गोना ट्राई 38 फर्स्ट. DCF एट द रेट 38%. चलो कैलकुलेशन करेंगे आप मेरे साथ. 99,500 मल्टीप्लाइड बाई 38% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.725. 0.725 नहीं सर, मल्टीप्लाई बाय 0.725, 0.725. 99,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.725. बोलो कितना आ रहा है? 72,138. आपने 7 लाख बोला सर. ओके सॉरी. चलो सेकेंड कैलकुलेशन आप कीजिए. 1,10,000 इंटू 0.525. 57,750. टू गुड. चलो 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.381. 36,576. Again 96,000 into 0.276. 26,496. And last one 68,000 multiplied by 0.2. Very good. और ये सबका टोटल करना है सर आपको, all of them.
2,06,560. वेरी गुड. नाउ 2,06,560 हमारे इनफ्लोज हुए और हमारा आउटफ्लो 2 लाख है. सो आई गेस हम अभी भी एनपीवी पॉजिटिव पे है. तो आई गेस हम 10 और 38 के बीच में तो नहीं निकाल सकते, तो हमें एक और लेवल आगे जाना पड़ेगा. ये 38% तक है. वी आर गोना गो टिल 40%. DCF एट द रेट 40%. चलो, नाउ कैलकुलेशन अगेन स्टार्ट्स. 99,500 into 0.714. 71,043 करेक्ट है. 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.510. 1,10,000 into 0.510. 55 पक्का चेक कर लूँ एक बार मैं. 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.510. 56,100 आ रहा है मेरा. ओके, नेक्स्ट वन. 96,000 into 0.364. 34,944. और मैंने नेक्स्ट आंसर निकाल लिया है, दैट इज 24,960. चलो आप लास्ट आंसर निकालिए. 68,000 into 0.186. चलो फिर से सबका प्लस. 12,648 प्लस 24,960 प्लस एवरीथिंग. $1,99,695 इज लेस देन 2 लाख. सो आई गेस हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और IRR निकाल सकते हैं हम लोग. हैव अ लुक एट दिस. वर्किंग नोट नंबर 5, IRR. IRR निकालने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट NPV एट द रेट. अब अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं 10 और 40 के बीच में नहीं निकालूंगा, मैं 38 और 40 के बीच में निकालूंगा. एट द रेट 38%, एट द रेट 40%. PV इनफ्लो is equal to 2,06,560 minus PV outflow, that is 2 lakhs, that is 6,560, and at the rate 40% is 1,99,695 minus 2 lakhs. 1,99,695 minus 2 lakhs कीजिए. -305. एक पॉजिटिव एनपीवी, एक नेगेटिव एनपीवी. IRR इज समवेयर बिटवीन दैट. सो गाइज, IRR इज इक्वल टू फॉर्मूला लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय summation of NPV multiplied by difference of rate. Lower rate 38 plus positive NPV 6,560. 6,560 plus 305 6,865 बरोबर ना. इंटू डिफरेंस ऑफ रेट इज 2. चलो आप कैलकुलेशन कीजिए. 6,560 डिवाइड बाई 6,865 इंटू 2 प्लस 38. 39.91% is your IRR. Are we clear? पक्का. सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस हो रही थी इस क्वेश्चन में. चलिए कॉपी कर लीजिए आप.
So are we done with question number 11? Take the next one. Question number 12. A company is considering the proposal of taking up a new project which requires an investment of 400 lakhs on machinery and other assets. The project is expected to yield the following earnings before debris and taxes. Once again, underline the word before debris and taxes. Before debris this time though. Can I say this is NPBDT? Net profit before debris and tax. Less debris, less tax. Add the depreciation back, we go to something that is known as cash flows. Over the next 5 years, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Cost of raising the additional capital is 12%. So 12% is nothing but something that is known as a cost of capital, discounting rate. And assets have to be depreciated at 20% on written down value basis, depreciation WDV. Maza aayega. The scrap value at the end of 5-year period may be taken as 0. This question, I'm going to teach you the concept of salvage value. Income tax applicable to the company is 50%. You are required to calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decisions. Also calculate internal rate of return of the project. Note, present value of 1 rupee at 10% of interest was as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5. 10%, 12%, 14%, 16%. Cost of capital 12% का है. So पहले तो हम NPV calculate करेंगे 12% के हिसाब से. 10, 14, 16 I guess हमें IRR calculate करने में help करेगा. फिलहाल हमारा concentration हम NPV पे करते हैं. Have a look at this calculations. Question number 12. NPV. Now पूरे चार्ट के हिसाब से जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन में NPV was not that complicated. यहाँ पे भी इतना नहीं है, but we need to understand the concept well. 12. NPV, PV, inflow, 1, recurring inflow, 2, salvage value. First one is recurring inflow and second one is what? The salvage value. Third one, possibility is known as recovery of working capital. Now, recovery of working capital, question में कुछ है ही नहीं working capital नाम का, so I am avoiding that. PV outflow. 1, cost of asset. Inflow minus outflow. We will have something that is known as NPV, net present value. सबसे important फंडा इस क्वेश्चन में जो आप मुझसे लर्न करेंगे that is the concept of salvage value. We'll understand that. But first things first, working note number 1 तो हम किसका बनाएंगे? Recurring inflow. Can we work on that? And NPBDT that they gave you was 160 and rupees are in lakhs. So tables पे लिखेंगे rupees in lakhs. कहाँ पहुँचना है हमें? We need to reach to cash flow at a discounting rate of 10%. Same. This time, rather than preparing a table on a vertical column, we'll keep it like this because एक तो NPBDT से start हो रहा है and second हमें IRR भी calculate करना है. Have a look. कितने साल की बात कर रहे हैं हम लोग? 5 years. Working note number 1. Years 1, 2, 3, 4, 5. 5 years. Year 1, 2, 3, 4 and what? 5. First one. NPBDT. Net profit before debris and tax. Amount they have given you is 160, 160, 180, 180, 150. 160, 160, 180, 180, 150. NPBDT से लेस क्या करेंगे हम लोग? डेप्री लेस करना है, बट डेप्री दिस टाइम इज नॉट बाय SLM, डेप्री इज बाय WDV. कितना परसेंटेज WDV बोला? 20%. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 400 lakhs. डेप्री की कैलकुलेशन देखिए आप यहाँ पे. कॉस्ट 400 lakhs. डेप्री 20%,
80, 400 minus 80, 320 minus डेप्री 20%, 64. सर कैलकुलेशन करेंगे आप मेरे साथ? 320 minus 64 मैं करूँ? 256 का 20% निकालिए. 51.2 256 से माइनस कीजिए. इसी अमाउंट का 20% निकालिए. 40 पॉइंट माइनस 204.8, माइनस करना था. 163.84. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और इसका डेप्री इंटू 20%, 32.768 माइनस 163.84, 131.072. 5 साल के डेप्री मिल गए हमें. WDV, दिस टाइम इट्स नॉट SLM, WDV. मजा आएगी. 1 2 3 4 5 5 साल के डेप्री. आई एम टेकिंग देम इनटू कैलकुलेशन. डेप्री फर्स्ट ईयर 80, सेकेंड ईयर 64, थर्ड ईयर 51.2, फोर्थ ईयर 40.96, नेक्स्ट ईयर 32.768. करेक्ट है? चलो NPBT 160 minus 80 is 80, 96. 180 minus 51.2, 128.8. 180 minus 40.96, 139. 150 minus 32.768, 'Net profit before tax less tax'. क्वेश्चन में पढ़िए आप, टैक्स कितना परसेंटेज है? NPAT. The question specifies the tax is 50%. चलिए 50% निकालेंगे आप इसका. 40, 96 का 50%, 48, 128.8 का 50%, वेरी गुड. 139.04 का 50%, 69.52 एंड 107.232 का 50%, 53.616. ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला हमें. प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? डेप्री टू रीच टू CF. चलो डेप्री ऐड करते हैं हम लोग. तो डेप्री ऐड करेंगे हम लोग. 80, 64, 51.2, 40.96, 32.768. चलो टोटल 120, 48 and 64, 112, 51, 5, 115.6, 69.52 plus 40.96, sir. 1110.48 and the last one. बोलो. नहीं सर, 86, 53 point how much? 53.616. 180, 180, 180, 150. So 50 के बाद कितना? 86 point what? 402. ये क्या मिला हम लोग को? CF. एकदम करेक्ट है. कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को. 150 माइनस 32.768. स्टार्टिंग से कैलकुलेशन चेक करो.
ये 117 है, 107 नहीं है, करेक्ट है ना? 117 का 50%, 58.616 और 58.616 में 32 ऐड, 32.402, इज इट 91.018? बराबर ना? अभी करेक्ट है। चलो, क्या बोल रहे हो आप? लेस क्या बोला मैंने? 58.616 प्लस 32.768, 91.384। करेक्ट है? तो CF आ गया। अब CF के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%। फैक्टर्स आर गिवन टू अस। 12% के फैक्टर 0.89, 0.8, 0.71, 0.64 and 0.57. Get me the total. DCF 120 into 0.89, टोटल का मतलब मल्टीप्लीकेशन। हाँ, 120 into 0.89, 106.8। सेकेंड मैं लास्ट से करूँ, 91.384 into 0.57 is 52.8909। सेकेंड मिला 89.6। थर्ड करो 110.48 into 0.64, 70.71। थर्ड का आंसर 82 point what? 076। Total of all of them 1 2 3 4 5, total of all of them. This is DCF at the rate 12%, huh guys? Point what? 401.276 is the total. This is actually the cash inflows that is recurring at the rate 12%. Next one, working note number 2 is salvage value. Now this is what you need to understand the most in this question. Working note number 2 is the salvage value. Now it's very important for us to understand the word scrap value and salvage value for us in this chapter, and particularly in FM, have different meanings. Salvage value अलग है, scrap value अलग है. Scrap value का मतलब value at which an asset will be sold. Salvage value का मतलब है scrap value पे asset बेच दिया, उसके बाद उसका जो accounting implication होगा कि अगर हम asset बेच रहे हैं तो हमें profit होगा या loss होगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा. अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट होता है तो P&L क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे तो वो प्रॉफिट के वजह से हमें टैक्स भरना पड़ेगा. अगर लॉस होता है तो हमारा टैक्स बच जाएगा. नाउ दिस इज नोन एज अ टैक्स इम्प्लीकेशन. सैल्वेज वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू एड और लेस द टैक्स इम्प्लीकेशन. द लैंग्वेज इज सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू scrap value add tax on loss or less tax on profit. This is the important stuff as far as salvage value is concerned. Salvage value is equal to what? Scrap value. अभी asset बेच दिया तो scrap value हमें मिल रहा है. Now वो scrap value जो हमारे पास आ रहा है उसके बाद हम ये सोचेंगे कि असेट पे प्रॉफिट हो रहा है या असेट पे लॉस हो रहा है. अगर असेट पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा. टैक्स भरना पड़ेगा तो दैट विल लीड टू टैक्स आउटफ्लो.
तो सैल्वेज वैल्यू प्लस टैक्स ऑन लॉस लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो लेस और लॉस होगा तो ऐड। और मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन के हिसाब से। सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी? दे सेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज नील, कुछ है ही नहीं, पर असेट बेच दिया जीरो पे। अब जब भी असेट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सो आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कंपेयर द स्क्रैप वैल्यू विद द WDV ऑफ द असेट, एंड the WDV of the asset on the date of sale was 131.072। हमारे बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू थी 131.072 और उसको बेचा कितने में हम लोग ने? जीरो पे। तो 131.172 का असेट जीरो पे बेचा तो फुल ऑन लॉस हो गई हमें 131.072 की। ये लॉस हम जाके P&L अकाउंट में लिखेंगे। P&L अकाउंट में जाके लॉस लिखोगे तो अपना टैक्स बच जाएगा, इसका 50% तुम्हारा टैक्स सेविंग होगा। 50% टैक्स 131.072 का 50% 65.536 का टैक्स बचा। सैल्वेज वैल्यू is equal to nil plus 65.536 is equal to 65.536. Are you understanding this? असेट बेचा कितने में? जीरो, कोई पैसा नहीं आया, पर लॉस हुआ, अकाउंट में गया, उतने का टैक्स बच गया। सो आई एम गेटिंग 65.536। साइमल्टेनियसली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप मैंने असेट 200 में बेचा तो 200 आ गया, पर 131 का असेट था तो प्रॉफिट आता। प्रॉफिट पे हमें टैक्स पे करना पड़ता, कैश आउटफ्लो होता। सो अगर कैश जाएगा सो हम क्या करेंगे? लेस। सो इट विल बी स्क्रैप वैल्यू लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है? स्क्रैप वैल्यू एड टैक्स ऑन लॉस, दैट इज नोन एज सैल्वेज। क्लियर है? टू गुड। अब ये सैल्वेज वैल्यू ये नहीं भूलना है कि ये पैसा आज नहीं आ रहा है, ये पैसा आ कब रहा है? आफ्टर 5 ईयर। तो इस पे 5वें साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। व्हाट इज द 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर? क्वेश्चन पढ़िए आप आराम से। आई कैन सी द 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12% एट 0.57 इंटू 0.57। चलो 65.536 इंटू 0.57 37.356 कर दूं? समझ रहे हैं आपको? प्रेजेंट वैल्यू पे तो लाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ये पैसा हमारे पास कब आ रहा है? ये पैसा हमारे पास आ रहा है 3 साल के बाद, सॉरी 5 साल के बाद। सो 37.356 कंटिन्यूएशन बैक टू द स्टेटमेंट 37.356। चलो 37.356 प्लस 401.276 438.632 एकदम करेक्ट। कॉस्ट ऑफ द एसेट वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं, आज ही पैसा जा रहा है पूरा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट इज गोइंग आउट? I can tell you the cost of the asset is 400 lakhs. 400 lakhs. Answer is 38.632. The question number 1 in your question, basically they are saying you are required to calculate NPV of the project and advise the management to take appropriate decision. So boss, the decision, the management should go ahead with the project. Should go ahead with the project as NPV is positive. As what? NPV is positive. Clear? Too good. Now question number 1 था ये. Question number 2, can I say we need to calculate IRR? बट IRR के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिव NPV और हमें क्या चाहिए? एक नेगेटिव NPV। पॉजिटिव NPV हमारे सामने है 12% पे। IRR इज द रेट एट विच NPV शुड बी 0
तो आप मुझे ये बताएं कि मैं रेट बढ़ाऊं या रेट कम करूं. Should I increase the discounting rate above 12 or should I decrease the discounting rate below 12? Because in a question they are giving me 10% का discounting rate, 14% का discounting rate, 16%, सबका discounting rate दिया है. Discounting rate बढ़ाना चाहिए. So let's try it. Will the 14% rate now? चलिए ये कैलकुलेशन ही आगे बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे. At the rate 14%. 14% के फैक्टर लिख रहा हूं मैं. 0.88. Next one 0.77, 0.67, 0.59 and 0.52. और इसका DCF निकालेंगे हम लोग फिर से. करेक्ट है कि नहीं? सो फर्स्ट वन किसको मल्टीप्लाई करोगे? DCF को फैक्टर से मल्टीप्लाई ना. डोंट मेक दैट सिली एरर. You are going to multiply CF with the factor to get a DCF. You are going to multiply CF with this factor to get this DCF. So 120 into 0.88. 120 into 0.88. Very good. Next one. 112 into 0.77. 'Very good. Next one. 115.6 into 0.67. 77.452. Next one. 110.48 into 0.59. 65.18. Last one. 91.384 into 0.52. 47. चलो सबका टोटल कर लो आप. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. मैं करूं 304. चेक करो एक बार फिर से. हाँ ऑफ कोर्स. 0.452 + 65.18 + 47.51. मेरा आंसर आ रहा है 381.982. दैट इज 382 आ रहा है. चलो आप यहाँ पे आइए. स्टेटमेंट के साथ IRR कैलकुलेट कर रहा हूँ और IRR के लिए मुझे पहले NPV कैलकुलेट करना है एट द रेट 14%. अगर 14% पे नेगेटिव आ जाए तो मैं IRR कैलकुलेट करूंगा 12 और 14% के बीच में एट रेट 14. फर्स्ट वन रिकरिंग इनफ्लो 382. सेकेंड सैल्वेज वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहां पे आइए आप मेरे साथ सैल्वेज वैल्यू के कैलकुलेशन पे. आर वी गेटिंग 65.536? एग्जैक्टली सेम अमाउंट आएगा 65.536 पर डिस्काउंटिंग फैक्टर बदल जाएगा ना. कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा हमें अभी? 14% वाला. सो 65.536 इंटू 14% का मेरा फैक्टर है. 14% का फैक्टर ढूंढ रहा हूं मैं 0.52. सो आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू 65.536 इंटू 0.52. प्लीज आंसर बताइए आप मुझे. 34.078. 34.078 इज व्हाट? 08 प्लस 382 करो. 416.078 is 416.08 minus PV outflow, that is the cost of the asset. Cost of asset 400. Is it 16.08? Is it still positive? 38%, sorry 12% पे पॉजिटिव, 14% पे भी पॉजिटिव आ रहा है. तो भाई 12 और 14 के बीच में तो निकाल नहीं सकते, मेरे को और बढ़ाना पड़ेगा परसेंटेज. अब देखिए जरा, उन्होंने और कोई परसेंटेज दिया है आपको 16%. तो अभी हमें फिर से एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एट द रेट कितना परसेंट? 16. उन्होंने जो फैक्टर्स दिया आप सब यूज करेंगे. सो एट द रेट 16% पे जाऊंगा. पहले रिकरिंग इनफ्लो. सो अगेन वर्किंग नोट नंबर 1 पे
This time discounting factor at the rate 16%. फैक्टर ले लेता हूं मैं पहले 0.86, 0.74, 0.64, 0.55 and 0.48 factors. चलो first one 105.6 into 0.86 sir. मैं लास्ट से कर रहा हूं कैलकुलेशन 90.816 is 82. दिस इज DCF अगेन. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सर? मिस्टेक कर लिया हम लोग ने. ये कैलकुलेशन किसके साथ करनी है आपको? 120 के साथ. हाँ, CF मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो 120 इंटू दिस. बोलिए 103.2. चलो नेक्स्ट वन मैं लास्ट से कर रहा हूँ 91.384 इंटू 0.48 43.86 82.88. नेक्स्ट वन 110.48 इंटू 0.55 60.764. थर्ड वन क्या है? 73.9 84. ये सबका टोटल करो 1 2 3 4 5 ऑल 5 रिकरिंग इनफ्लोज टोटल्ड अप 103 82 73 60 and 43.86. Too good. Please total up. $369.688. वेरी गुड. और हमारा सैल्वेज वैल्यू भी सेम आएगा बट लास्ट का फैक्टर 0.48 होगा. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए आप 65.536 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 31 पॉइंट व्हाट 45 और यहाँ पे 69 ले सकते हो आप. चलो इन दोनों का टोटल 369.69 प्लस 31.45 401 आएगा सर? नहीं 401 नहीं आना चाहिए. 369 राइट है वो टोटल चेक करो. 400 के नीचे ही आना चाहिए. कहाँ से 401 बोल रहे हो आप? चेक करो वो टोटल चेक करो. ये वाले सारे टोटल. ओके 103.2 प्लस व्हाट 82.88 प्लस 73.984 प्लस 60.764 प्लस 43.86 360 नहीं 364 आ रहा है मेरा. 364.69 करेक्ट है. फिर से मैं चेक करूँ एक बार. तू कुछ मिस्टेक कर रहा लगता है. 103.2 82.88 73.984 60.764 43.86. चलो चेक है आप टेंशन मत लो. अभी 364.69 प्लस 31.45 करो. आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 396.14. करेक्ट है ना? 396.14 माइनस 400. एक पॉजिटिव आना चाहिए एक नेगेटिव आना चाहिए. वो तो होना ही चाहिए ना. वेरी गुड. माइनस 3 पॉइंट काम हो गया ना अपना. एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव एनपीवी और इसके बीच में आईआरआर मिलेगा. टू गुड. आईआरआर फॉर्मूला. सो आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस
positive NPV divided by summation of NPV multiplied by the difference of rate. Lower rate 14% plus positive NPV 16.08 divided by summation of NPV 16.08 plus 3.86 19.94 and divided by the difference of rate is 2. Chalo, 16.08 divided by 19.94 into 2 plus 14. My answer is 15.61 percentage. आ रहा है आपका आंसर? 15.61 percentage is my IRR. Are you understanding this? Too good. So NPV, IRR यही प्रैक्टिस चल रही है हमारी. कॉपी कीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्लीज़.
क्वेश्चन नंबर 13, आई गेस 12 हम लोग ने कंप्लीट किया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. A company is considering a proposal of installing a drying equipment. The equipment would involve a cash outflow of 6 lakh and net working capital of 80,000. The expected, so cash outlay भी है और working capital भी है ये question में. The expected life of the project is 5 years without any salvage value. Assume the company is allowed to charge debris on straight line for income tax. Estimated before tax cash inflows. Underline the word before tax cash inflows. What do you mean by word before tax cash inflows? Net profit before tax? नहीं. Before tax cash inflows का meaning है net profit before debris and tax. Before tax profit नहीं बोला है. Before tax cash inflows बोला है, मतलब अभी तक नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुआ है यहाँ से. And the non-cash expense जो माइनस नहीं हुआ है that is known as depreciation. So before tax profit अलग है, before tax cash inflows अलग है. Before tax profit is net profit before tax after debris, but before tax cash inflows is net profit before depreciation and tax. Clear? Continue. Before tax cash inflows are year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. The applicable income tax rate to the company is 35%. If company's opportunity cost of capital is 12%, calculate equipment's discounted payback, net present value, internal rate of return. 4 चीज़ें पूछी है. PV factors at 12%, 14%, 15%. करेक्ट है. बट ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के पहले आई गेस हमें अपना वर्किंग स्टार्ट करना पड़ेगा. और बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज मतलब NPBDT दिया हुआ है. पे बैक के लिए CF ज़रूरी है, NPV के लिए DCF, डिस्काउंट पे बैक के लिए DCF और IRR के लिए तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. बट वी विल स्टार्ट विथ 12% एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट. कैन आई स्टार्ट वर्किंग? चलो. First one, NPV. अच्छा, यहाँ पे डेप्री SLM है या WDV है? SLM. And do we have any scrap value? Now, when the depreciation is SLM, the scrap value and the salvage value will be exactly same. Because if you are charging debris as per SLM, then in that case, the scrap value and WDV will match. And there will be absolutely no profit. तो टैक्स इम्प्लीकेशन ही नहीं आएगा. और अगर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा तो सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा. हैव अ लुक हियर. व्हाट एम आई सेइंग? क्वेश्चन नंबर 13. कैलकुलेशन NPV की हो रही है पहले. फर्स्ट वन, PV इनफ्लोज, दैट इज 1 रिकरिंग इनफ्लो. इस क्वेश्चन में रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, PV आउटफ्लो, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है, कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड वर्किंग कैपिटल. लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं था, इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कहानी है. Inflow minus outflow, we will get something that is known as NPV. But apart from NPV, they are also asking you payback. They are also asking you discounted payback, discounted payback, IRR. बहुत कुछ पूछा हुआ है. First of all, net profit before debris and tax 5 years. But debris SLM है तो वो एक अच्छी कहानी है इस क्वेश्चन में. So 1, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 यही वर्किंग यूज कर सकते हैं हम लोग. year 1, 2, 3, 4, 5. I'll start from here. First one, 240.
275, year 3 210, 180, 160. Minus the depreciation. Cost of the asset is 6 lakh. 5 years, no salvage value, 6 lakh. Divided by 5, amount are in thousands, huh? So divided by 1000 करना मत भूलना. 120 आ रहा है मेरा depreciation. And SLM है, that's the best part. So 120 for all the 5 years. Net profit before tax. 240 minus 120. 120. 155. 90. 60. 40. Tax rate. What is the tax rate specified in the question? 35%. चलो सबका 35% अपना टैक्स निकालेंगे आप. 120 का 35%, या तो आप 65% निकालिए उसका. 120 का 65%. टैक्स निकाल के क्या फायदा? आफ्टर टैक्स निकालते 78. 155 का 65%, 100.75, 58.5, 39 और लास्ट का मैंने निकाल दिया है 26. उस पे हम डेप्री ऐड कर दें फिर से 120, तो हमें मिलेगा CF, और CF के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट समथिंग दैट इज नोन एज अपना पे बैक. 120 प्लस 78, 198, 220.75, 178.5, 159, 146. This is your CF. Clear? Too good. चलो नेक्स्ट वन. CF के बाद हम थोड़ा और प्रोसेस करते हैं. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, कितना परसेंटेज बोला उन्होंने? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%. 0.8929. They are using 4 decimal points. We need to use all of them. 0.7972. 7972. Sorry. Second, 0.7118. Next one, 0.6355. The last one, 0.5674. Chalo. So I will get something that is known as a DCF. आंसर निकालिए मल्टीप्लिकेशन करके. हाँ कितना? 176 पॉइंट. वेरी गुड. सेकेंड 176.42. वेरी गुड. नेक्स्ट वन 220.75 मल्टीप्लाइड बाय किससे किया तुमने? 0.7972. 175.98 आ रहा है मेरा आंसर. थर्ड करो. थर्ड का बोलो. 127.06 करेक्ट है. चलो लास्ट मैं करता हूँ. 146 इंटू पॉइंट, एक मिनट. हाँ 82.84 मैंने ये निकाल दिया. और 101.04. टू गुड सर. सबका टोटल दीजिए. 1 2 3 4 5. दिस इज DCF एट द रेट 12%. $82.84 है ये. किया
663.71. अपनी टेबल पे आ जाए. रिकरिंग इनफ्लोज 1663 पॉइंट व्हाट 71. वर्किंग नोट नंबर 2, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग नोट नंबर 2, ये DCF@12% है. थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद. वर्किंग नोट नंबर 2, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट वन @12%. कितना वर्किंग कैपिटल जा रहा है प्रोजेक्ट के अंदर? 80,000. वर्किंग कैपिटल 80,000. असेट, कॉस्ट ऑफ द असेट वाज 600. आउटफ्लो टोटल सेट है 680. अभी 80 जा रहा है तो 80 वापस आएगा, पर एट द एंड ऑफ 5 years वर्किंग कैपिटल फ्लैट है. जितना जा रहा है उतना वापस आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट. बट व्हाट विल हैपन इज, जो जा रहा है जो आएगा विल बी कमिंग एट द एंड, तो उसे डिस्काउंट कराना पड़ेगा. एंड द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 80 इंटू 0.5674. चलो कैलकुलेशन सर. 80 इंटू 0.5674 40, हाँ 45.392. परफेक्ट है. चलो इसे लिख देते हैं यहाँ पे 45.392 प्लस 663.71. 709.102 माइनस 680 29.102. क्या मिल गया हम लोग को? ये NPV. सिंपल है, टू गुड. अभी दूसरे क्वेश्चंस ले लेता हूँ. NPV ले लिया, उन्होंने दूसरा कहा था पे बैक. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव टेकन केयर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग पे बैक. पे बैक नॉर्मल निकाल रहा हूँ मैं. पे बैक नॉर्मल भी पूछा है, पे बैक डिस्काउंटेड भी पूछा है. मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ. पे बैक इज अ पीरियड विद इन विच वी गेट आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 600. वर्किंग कैपिटल काउंट मत करना. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल तो सर्कुलेटिंग अमाउंट है. हमें ये जानना है हमें 600 वापस कब आ रहा है. पे बैक किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? CF पे. वर्किंग पे आइए CF पे. CF दिस कॉलम, ये कॉलम पे पे बैक कैलकुलेट होगा गाइस. पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक इस अमाउंट पे होगा. दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक. तो पे बैक 600 वापस चाहिए. चलो आप टोटल कीजिए मेरे साथ. 198 प्लस 220.75 कितना हो गया? अभी अगर मैं 178 ऐड करूंगा तो 600 क्रॉस होगा. ऐड करो 178.5. चेक करो 600 क्रॉस हो रहा है कि 600 के पहले अटक गए. 590. अभी यहां पे हम 597 आ चुके हैं. हमें कितना चाहिए वापस? तो 597 मतलब 3 साल तो लग गया. प्लस कहने से चौथे साल से थोड़ा अमाउंट चाहिए. कितना अमाउंट मिल चुका है अभी तक आपको? 597 पॉइंट हाउ मच माइनस 600. सी द कैलकुलेशन. यहां पे आइए. पे बैक 3 साल तो लग चुके हैं, प्लस आपको और कितना पैसा चाहिए? 2 पॉइंट आउट ऑफ कितना? 169. सॉरी 169 नहीं, 159. करेक्ट है ना? चलो 2.75 डिवाइड बाय 159. प्लस 3 ऑफ कोर्स 3.0172. 3.0172 समझ रहे आपको? चलो नेक्स्ट वन. ये पे बैक था. थर्ड वन में निकाल रहा हूं डिस्काउंटेड पे बैक. तो डिस्काउंटेड पे बैक की कैलकुलेशन किस पे होनी चाहिए? डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे होनी चाहिए. डिस्काउंटेड कैश फ्लो यहां पे आ जाओ. चलो अभी आराम से मेरे साथ कैलकुलेट करना फिर से. 176.79 प्लस 175.98 प्लस 127.06
हो जाएगा 101, 600 के पहले आएगा, प्लस 101.04, कहाँ पहुंचे? अभी तक 580 पे हो, मतलब ये हो गया 4 साल क्रॉस हो गया ना आपका। अभी जो भी आंसर है -600 कर दो वहां पे, और चाहिए ना, 4 साल तो क्रॉस कर दिया, और चाहिए, वापस आ जाओ कैलकुलेशन पे। इज इक्वल टू 4 प्लस 19 पॉइंट हाउ मच, 13 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 82.84, 19.30 डिवाइडेड बाय 82.84 प्लस 4, 4.230 years, 3.0712 years. Are we clear with this? ये पे बैक था, ये डिस्काउंटेड पे बैक था, और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? IRR। IRR के लिए एक पॉजिटिव एनपीवी जो हमारे पास है और एक नेगेटिव एनपीवी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पॉजिटिव 12% पे है, हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। दे हैव गिवन मी समथिंग दैट इज नोन एज 14%, सो आई विल हैव टू वर्क एट 14% ऑल्सो। सो सबसे पहले IRR, वर्किंग नोट नंबर नहीं, आंसर नंबर 4 IRR, बट IRR के लिए मैं निकाल रहा हूँ NPV एट द रेट 14%, तो रिकरिंग इनफ्लो, recovery of working capital, total cost of the asset, working capital minus cost of the asset is 600, working capital 80, ये सेम रहेगा। और यहाँ पे NPV एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 12 पे पॉजिटिव है, 14 पे ट्राई करते नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। 14 पे भी अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर हमें एक और आगे का रेट लेना पड़ेगा जो उन्होंने दिया है, बट पहले ट्राइंग 14 से होगी। वर्क इट आउट विथ मी नाउ। बैक टू वर्किंग नोट नंबर 1, discounting factor at the rate 14%. Discounting factor at the rate 14% is 0.8772. Second, 0.797695. Third, 0.675. Fourth, 0.5921. Fifth, 0.5194. द टोटल नाउ किससे मल्टीप्लाई करोगे सर आप? नहीं, CF से। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? CF से, डिस्काउंटिंग फैक्टर इससे, तो फिर से एक बार DCF मिलेगा आपको। 198 इंटू 8.8772, 173.68, 69 आ रहा है। करो आगे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 169 point what? 86। चलो नेक्स्ट। 120.48 नहीं, ज़्यादा आ रहा है सर। हाँ ठीक है, आप राइट हो। नेक्स्ट। $94.40 and the last one $94.14 था ना? बोलो लास्ट। 75.83। चलो पांचों का टोटल कर दो सर। $634। चलो इनफ्लो एग्जैक्ट 634 सर, मैं चेक कर लूँ एक बार फिर से। पॉइंट डेसिमल कुछ नहीं आ रहा है। ओके चलो बेस्ट है फिर। ये 12% है, ये 14%, 80 इंटू 0.5194, 80 इंटू 0.5194,
41.552, चलो 41.552, 41.552 प्लस 634, वेरी गुड, 675.552 माइनस 680, यहीं पे नेगेटिव आ गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, minus 4.448. Now we have one positive NPV at 12 and we have one negative at 14. 15 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, हमें IRR निकालने के लिए यही दो के बीच में रहना है, 12 और 14. And now your IRR calculation, IRR is equal to lower rate plus positive NPV divided by difference of NPV, sorry, summation of NPV multiplied by difference of rate. फर्स्ट वन लोअर रेट 12 से स्टार्ट कर रहा है, 12 का पॉजिटिव एनपीवी 29.102, चलो सर कैलसी 29.102 प्लस 4.448 33.10 नहीं सर 4.448 लिया आपने, 29.102 प्लस 4.448 29.102 plus 4.448 33.55 into the difference of rate is 2. चलो 29.102 divided by 33.55 multiplied by 2 plus 12 13.734% is your IRR. So payback मिल गया, discounted payback मिल गया, NPV मिल गया, IRR मिल गया, perfect है, please.
So we are done with question number 13. Take the next one. Question number 14. Question number 14. A company has to make a choice between two projects, namely A and B. अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन पे हम लोग दो प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं. One is project A and second one is project B. The initial capital outlay of two projects are 1,35,000 and 2,40,000 respectively for A and B. There will be no scrap value at the end of both the lives. The opportunity cost of capital is taken at 16% and the annual incomes are as under. Underline the word annual incomes. They are not specifying any tax rate. Tax rate नहीं है तो annual incomes को आप NP BDT ले लो या cash flow दोनों same ही होगा. अगर tax नहीं है तो डेप्री अपना कोई काम ही नहीं कर पाएगा. NP BDT लेस डेप्री करने का टैक्स ही नहीं हटाओगे तो वापस डेप्री ऐड कर दोगे तो सेम जगह पे पहुंच जाओगे. सो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डायरेक्टली कैश फ्लोज अवेलेबल है. You are required to calculate for each project. 1. Discounted payback. 2. Profitability index. And 3rd one, net present value. Discounted payback, PI, NPV. Correct? Let's do the calculations. But we have got two projects. One is project A and second one is project B. Question number 14. 1-4. Chaliye, I'll start. Question number 14. And we have got two projects, project A and project B. Calculation first, project A करेंगे. दोनों कैलकुलेशन साथ में कर दें. DCF ही तो ढूंढना है. Year, project A, CF, DCF. यही चाहिए ना हमें. And project B, CF, it's B for Bombay, DCF. करेक्ट जा रहा है. फर्स्ट वन, ईयर 1, 2, 3, 4, 5. 5 years. Project A, CF, nil, 30, 132, 84, 84. Project B, 60, 84, 96. Second year है. Third year, 96. Fourth year, 102. And the last year, 90. Correct? DCF dash 30,000 into 0.743, 22,290, 132 into 0.641, 84,612, 84,000 into 0.552, 46,368, and again 0.476, 39,994, 39,984. एकदम करेक्ट. नेक्स्ट 60,000 into 0.862, 51,720, 84,000 into 0.743. I'm getting 62,412. Correct जा रहा है. Next 96,000 into the factor that they have given to you is 0.641, 61,536, 61,536. Next one, 1,02,000 into 0.552, 56,304, 56,304, and the last one is 90,000 into 0.476,
42,840। ये हमने DCF निकाल लिया। अब दोनों प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन में फर्स्ट वन डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूं। कितना पैसा गया है आपका प्रोजेक्ट ए में? I guess we have spent 1,35,000. Now we need 1,35,000 rupees back. Year 1 done, 22,290. DCF पूछा है तो DCF पे कैलकुलेशन होना चाहिए 22 plus 84,612, 1,06,000 पे. Now if I add this 46, it's done. So I'll have to restrict my calculation to this, na? 3 years completed. I'm reaching at 1,06,902 अगर आप मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो. So it's 3 plus minus 135. I need 28,098 rupee more, and 28,928 divided by out of 46,368. 28,928 divided by 46,368 प्लस 3 जो ऑलरेडी है हमारे पास. सो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ व्हाट? 3.28098 डिवाइडेड बाय 46,368 प्लस 3. आई एम गेटिंग 3.60 years. 3.60 years ए का है. बी में हमें कितना पैसा चाहिए? बी में व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन बी? आई गेस इन्वेस्टमेंट इन बी इज 2,40,000. सो आई एम कैलकुलेटिंग 2,40,000 का इनफ्लोज. फर्स्ट वन 51,720 ईयर 1 डन, प्लस 62,412 ईयर 2 डन, प्लस 61,536 ईयर 3 डन, प्लस 56,304 ईयर 4 डन. And now I'm standing at 2,31,972, 240. पर 4 साल कंप्लीट हो गए हमारे. तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद की कहानी हम अगर डिलीवर करें, सो इट्स 4 प्लस हमारे पास 231,972 ऑलरेडी आ गया, माइनस 240. आई एम शॉर्ट ऑफ 8028 आउट ऑफ 42,840. सो 8028 डिवाइडेड बाय 42,840 plus the 4. I am getting 4.187 years. 4.187 years. Selection last में करता है, discounted payback. Second, PI. In fact, PI करने के पहले मैं NPV complete कर लूँ. So working, this was discounted payback to NPV, net present value. PV inflows minus PV outflows. PV inflow minus what? PV outflow. A, B. Outflow 135. Outflow 240. Inflows मुझे सबका टोटल चाहिए. DCF का टोटल, ऑल द 5 years का टोटल चाहिए मुझे. यहाँ पे हमारा टोटल ऑलरेडी 135 प्लस हम यहाँ पे जा चुके हैं. सो आगे जाते हैं हम, ये और ये ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे. आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 193,254. 193,254 माइनस 1,35,000. 193,254 प्लस 135 माइनस 135. 193,254 minus 135, 58,254. Second, B. वैसे DCF का टोटल at B 274,812. 274,812 minus 240 is 34,812. So this is calculation of NPV. Third calculation, PI is equal to PV inflow divided by PV outflow. So it's 193,254
divided by 1,35,000. And same year, 274,812 divided by 2,40,000. Correct जा रहा है? 1,93,254 divided by that, I'm getting an answer of कितना? 1.43. And second one का आंसर हम चेक करें, कितना बोल रहे हो आप? 1.15. करेक्ट है? चलो सिलेक्शन से जाते हैं. ए या बी में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 1 अकॉर्डिंग टू पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे? ए या बी? जो प्रोजेक्ट में अपना पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा वही सिलेक्ट करेंगे हम लोग. सो आई गेस आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए सिलेक्शन रैंक 1, रैंक 2. सेकेंड, एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो? रैंक 1, रैंक 2. थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से हायर देन 1, द हायर द नंबर. सो अगेन रैंक 1, रैंक 2. सो बॉस, द सिलेक्शन इज वेरी एविडेंट. दैट सिलेक्शन आई विल गो अहेड विद प्रोजेक्ट ए. क्लियर है? एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस. प्लीज कॉपी दिस.